Assalamu alaikum everyone. So as you know that we are done with the pragmatism, but there were some of the things that have been left discussing. We were discussing some of the philosophers regarding the ideas of pragmatism, and we were just done with some of the philosophers, and some of them or one of them was left. Okay, so you know that we were discussing John Davy. And yes, we are done with William James. And now we will move on with John Davy's views on pragmatism, what he has said, what he has shared on pragmatism. तो हमने बाकी का जो है वो हम लोगों ने philosophers को डिस्कस किया था. प्रीवियसली विलियम जेम्स को हम लोगों ने किया था कि उसके क्या व्यूज हैं, और हमने चार्ल्स सैंडर को किया था. और आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे pragmatism with reference to John Davy. Okay, so John Davy was an American philosopher and educator who was a leading exponent of philosophical pragmatism and rejected traditional methods of teaching. जो पिछले जो हमारे methods of teaching चल रहे थे, जिनसे बच्चों को teach किया जाता था, उन्होंने उसको जॉन डेवी ने उसको reject किया, and by routine favor of a broad-based system of practical experience. और उसने कहा there must be some practical application of the knowledge that have been shared with the students. ठीक है, so John Dewey is the father of modern experimental education. तो उसका ये था कि जो education है, it should not be always regarding the knowledge only, rather the practicality of the knowledge is also very much important. Okay, so John Davy attempted to combine both Peirce and James' philosophies of pragmatism. Okay, we are already done with previously हम लोगों ने देखा कि इनके और जो जॉन डेवी के का अगर ये व्यू था, तो जेम्स का और जो पायर्स है उनके भी कुछ ऐसे व्यूज थे. Okay, guys, over here, remember this, that Peirce, this is the name, and James also, you are going to capitalize them, the first letter of this name. So this is, you know, we always do not find the perfectly accurate material on internet. So इस तरह की छोटे छोटे issues जब हमें आ जाते हैं, so you are going to keep this thing in your mind that you are going to capitalize the first letter of the name as it is always recommended. Okay, so an early proponents of progressive education maintained that schools should reflect the life of the society. He said, education is not preparation for life. Education is life itself. तो रेवी ने कहा था कि education जो है वो it is not something that is preparing you for life. Rather, he said that education is life itself. It means that whatever you are going to grasp the knowledge, whatever the type is, जिस तरह का knowledge आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी उस तरह की जी रहे हैं और आप जिंदगी उस तरह की गुजार रहे हैं. ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो स्पेशलिटी होती है किसी टीचर की या किसी स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, व्हेन यू कम इन योर BS English or in your masters, when you opt a particular subject for your masters or for your BS English, after that when you are done with that degree, there is a lot more influence on your personality which subject you were, you know what, studying. चाहे वो इंग्लिश था, इस्लामिक स्टडीज था, कोई भी, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो नॉलेज आप गेन कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. ठीक है, और आप उसके इन्फ्लुएंस से यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ. जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि अंग्रेजी पढ़ने वाले तो अंग्रेजी बन जाते हैं. ये इस तरह की चीजें ना बहुत जो सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं, और टू सम एक्सटेंट उनका पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा असर होता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. इसमें मैं क्योंकि जहाँ पे आप जिस तरह के माहौल में रह रहे होते हैं और जिस तरह का लिटरेचर आप पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह की आपकी चीजें पसंद आपकी जो होती हैं, जो आपको आपकी पसंद होती है, it makes yourself, it is actually making you. तो आपकी जो है वो आप उस अपने, you cannot save yourself from this influence. Okay, so pragmatism and the educative process. So pragmatism is an educational philosophy that says that education should be about life and growth. तो जॉन डेवी का कहना था
क्योंकि एजुकेशन खुद एक, इट मीन्स दैट यू आर लिविंग अ लाइफ व्हेन यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो उसने कहा था कि एजुकेशन जो होती है वो जिंदगी के बारे में और ग्रोथ के बारे में होनी चाहिए। मतलब ऐसी एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हैं बट इसका आपकी लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए जिस तरह आई वांटेड टू व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स, सो when the teachers they asked for some thesis topic to decide in our research work, so I decided that I just shared the topic which was I was feeling that is very much interesting, was that education is influencing your personality, is it is actually grooming your personality. So I wanted to do research on it, or although I just observe the things and I just take into account all of the other things also. So the thing is कि मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल I'll agree with the viewpoint of John Davy कि आपकी जो education होती है it should be about life and growth। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ रहे होते हैं you become that thing, you become that personality जो आप पढ़ रहे होते हैं। Aims of education उसने कहा था जी क्या होने चाहिए? So the aim of education is more and more growth and creation of new values. One can create values through activities and experiences. तो आप जो certain activities होती हैं और आपके जो experiences होते हैं, अभी जिस तरह over here I'll share that inshallah you will I think, but I'm not sure that you will be taught by a particular subject that is linguistic one, but है तो linguistics का है, लेकिन हो सकता है कि आपको क्योंकि linguistics भी पढ़ाते हैं और literature भी पढ़ाते हैं, so I'm not sure but might be they can teach you this subject of psycholinguistics। ठीक है, this is the most favorite field of linguistics of mine। ठीक है, तो जो है वो उसमें आपको जब आप पढ़ते हैं about first language acquisition, that how a child learns or acquires language, automatically जब आपके सामने एक जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा होता है, तो आप उन सब चीजों को ना नोट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसकी जो फर्स्ट स्टेज है इसमें ये बोलेगा, उसकी फिर जो वन वर्ड स्टेज आएगी, फिर टू वर्ड आ गई है इसकी, और अब इसकी होलोफ्रेस्टिक स्टेज आ गई है। तो आप उसकी स्टेजेस को ना नोटिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज पे यू हैव बीन एजुकेटेड। ठीक है, तो आप जो चीज सीखते हैं ना, आप उसको अप्लाई भी करते हैं और आप उनको जब एक्सपीरियंस करते हैं उन इंसिडेंट्स को, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप उन चीजों को जो है वो बहुत इन डेप्थ आप देख रहे होते हैं। तो जो आपका जिस तरह से यहाँ पे आई वुड गिव यू अनदर एग्जांपल कि आप मुझसे एग्री करेंगे, द स्टूडेंट्स और द टीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट इस्लामियात और उर्दू जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट दे आर लाइक, और हिस्ट्री के, उर्दू का मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगी बट इस्लामिक स्टडीज हो गया और ये हिस्ट्री का हो गया, इनके कहते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं उनकी। ठीक है, आपने बड़ा इस पे माइट बी यू आल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग, बट आई पर्सनली बिलीव कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसका आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा असर होता है। Okay, so aims of education given by John Dewey in his Democracy and Education, Natural Development and Development of Social Efficiency. So he was of the view that education, the aim of the education should be the natural development of the child, of the person, and the development of social efficiency, that you are going to become a good citizen, you are going to become a good part of your society in which you are living. Without it, education is of no use। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे उस नॉलेज की, आपको वो आपकी डेली लाइफ में हेल्प आउट नहीं करेगा। जैसे इसमें एट द वेरी टॉप मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप बेस इंग्लिश क्यों कर रहे हैं? देयर आर अ लॉट मोर रीजंस कि you want to learn this particular language, you know that this is the this language has a very worth and value in this society, in our society in which you are living. So when you experience all these things, you just go for the things that are demanding। तो ये demanding है और आपको कहते हैं ना कि ग्रूम भी करता है आपकी पर्सनैलिटी को, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप जो है वो इसीलिए, अब दिस वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है? बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म होती है, ह्यूमन प्रैग्मेटिज्म होती है और एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म होती है। अब जी हम इसको बारी बारी देखेंगे।
Biological pragmatism, according to this, the capacity of a human being is valuable and important, which enables him to adjust with the environmental or makes him to change his environment according to his needs and requirements. Yes. यहाँ पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वैल्यूएबल है और इम्पोर्टेंट है, जो इसको इस काबिल बनाता है कि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए और वो उसको इस तरह से भी बनाता है कि वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक और अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेता है. दिस इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. जैसा कि व्हेन यू आर इन योर इंटरमीडिएट you experienced that English is a language that is worth studying or that is demanding. So you should go for BS English. अब आपने क्या किया? आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, इंटरेस्ट आपका था, but I can never say that although this was the main reason why I went for English, कि मुझे इंग्लिश के अलावा कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं था. मतलब मुझे लगता था कि कोई मतलब क्या करना है यार ये पढ़ के. तो इंग्लिश वाज अ सब्जेक्ट जो कि इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, और मुझे लगता था यार इसको पढ़ के कुछ मजा आएगा, मतलब कुछ फायदा होगा. डिमांडिंग भी था, सोसाइटी की डिमांड भी होती है इन विच यू आर लिविंग, और आपको बहुत ज्यादा आपकी आगे अच्छी जो है वो आपको चीजें जो है वो इन फ्यूचर मिल जाती हैं. तो अलॉट मोर थिंग्स होती हैं. तो दिस इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. ओके. Okay, so then next comes humanistic pragmatism. So this type of pragmatism is particularly found in social science. According to it, the satisfaction of human nature is a criterion of utility. Yes. Humanistic pragmatism says that the knowledge should be satisfactory for the human nature. Okay, so it should not be something like that you are not satisfied with whatever you are studying or whatever field you have chosen. So because when you are studying a particular subject that is that is not satisfying you, then what happens that you would just stop applying that knowledge what you have studied, और फिर उसमें क्या उसके बाद क्या होता है कि वो चीजें खत्म हो जाती है. You just take it aside. ठीक है. Okay, so then comes experimental pragmatism. So modern science is based upon experimental method. The pragmatism uses criterion of truth in every field of life. हर फील्ड में उन्होंने किया. So the human problems can be solved only through experiment. तो जो human problems हैं उसको उसने कहा है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. देखिए a lot more things हैं, a lot more subjects की हम लोग बात कर लें. जैसे अगर आप BS इंग्लिश कर लेते हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा समझा, बट आपने उसको अप्लाई नहीं किया उस नॉलेज को. एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ना. आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? आपने कुछ जिस तरह जो है वो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी पढ़ने के बाद आप सोचना शुरू कर देंगे. बिलीव मी, आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आप सोचना शुरू कर देंगे कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैंने कैसे अप्लाई करना है, और क्या जो मैं पढ़ रही हूँ उसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, क्या जो मैं पढ़ रही हूँ वो डिमांडिंग है. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे. इससे पहले शायद आपने ऐसा सोचा ना. ओके, सो प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम. करिकुलम बेटा बहुत वाइडर है. लेट मी नो यू कि करिकुलम होता क्या है. बेटा करिकुलम होता है ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होता है. आपका स्कूल, ठीक है, आपका जो है वो सिलेबस. अलॉट मोर पीपल को मैंने देखा है, उनको देखा है, लोग कहते हैं कि जी करिकुलम जो है वो आपका सिलेबस होता है. नो, सिलेबस इज जस्ट द पार्ट ऑफ योर करिकुलम. आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी करिकुलर एक्टिविटीज, आपका स्कूल, आपका जो प्लेग्राउंड है स्कूल का, आपकी अदर एक्टिविटीज, आपके प्रैक्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम दैट इज बीइंग डिसाइडेड बिफोर हैंड कि आपको इस कोर्स में क्या पढ़ा. आपके कोर्स बुक्स, आपके टेक्स्ट बुक्स, आपकी जो सारी की सारी जो आपकी आपके जो शेड्यूल होते हैं
तो हर चीज जो होती है वो आपकी किस में आ रही होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. So pragmatism curriculum is framed according to the following principles. कुछ principles हैं जी. Principle of dynamics and flexibility. Yes. तो डायनामिक्स होना चाहिए. डायनामिक्स होता है दैट इज नॉट स्टैटिक, जो चेंज हो सकता है, जो चेंज होता है. ठीक है. और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होगा तो चेंज होगा ना. ठीक है. तो इस तरह प्रेगमेटिज्म का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल है और डायनामिक है. इट मीन्स जहां आपको लगने लगे कि ये वर्थवाइल नहीं लग रहा, ये इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं लग रही, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वहां पे उसको चेंज किया जा सके आपके करिकुलम. ओके. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, हाइजीन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. तो ये यूटिलिटी सब्जेक्ट्स हैं. आप किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं या आप लिटरेचर पढ़ें, यू आर you know what, learning a lot more things from them. So priority is given to social science to make the citizens good, cooperative and useful citizens. तो अगर आप यूजफुल, कोऑपरेटिव और गुड जो है वो सिटीजन्स बनाना चाहते हैं तो यू शुड फोकस ऑन द सोशल साइंसेज. अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि तो फिर इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का तो कोई फायदा ना हो. हाउ? इट इज ऑल्सो सोशल साइंस, आई थिंक. क्योंकि टू सम एक्सटेंट इसके अंदर जो चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको जो है वो बता रही होती हैं कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं. और पहले क्या हुआ, जिस तरह अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, आपने लिटरेचर पढ़ा, टेल ऑफ टू सिटीज एक है नॉवल है. ठीक है. आपने उसको पढ़ा, आपको उसे पढ़ के लगा कि जो है वो इस तरह से होता है कि जब बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है कॉमन पीपल को और जो किसी भी क्लास को, तो वन द टाइम कम्स व्हेन दे जस्ट टेक द स्टैंड और फिर वो अपना मकाम हासिल कर लेते हैं. ठीक है. तो आपको इसमें बहुत ज्यादा जो है ना मॉरल मैसेजेस मिलते हैं लिटरेचर में. लैंग्वेज में आपको डिमांड भी है सब कुछ, तो it is, you know, it is also worthwhile to study. Methods of teaching. So it gives importance to child than books or teachers. बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है pragmatism बुक्स और टीचर्स की बजाय. अवॉइड्स, अब क्यों? क्योंकि इसने कहा कि अगर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस नॉलेज का फायदा नहीं है. जॉन डेवी ने जैसा कहा था, अगर उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. तो इसने, इससे क्या पता चला कि इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, बुक्स को, और टीचर्स को नहीं दी, बल्कि चिल्ड्रन को दी है, बल्कि स्टूडेंट्स को दी है. ठीक है जी. Then comes avoids outdated or rigid method of learning. उन्होंने कहा प्रीवियस वाले हटाओ ना जरा, ये जो ट्रेडिशनल वाले आप लोगों ने मेथडोलॉजीज लगाई हुई हैं, they are of no use. Methods include क्या? Learning by doing, practical experience, practical significance, provision of real life situations. Real life situations में उनको apply करेंगे project method, जिसमें हर चीज है डिस्कशन, क्वेश्चनिंग और इंक्वायरी. क्यों? क्योंकि the importance is given to the child, not to the teacher or to the books. Contributions देख लेते हैं जी हम. जो है वो इसमें contributes to the development of a system which vocation centered है जी. ठीक है. एक ऐसे सिस्टम की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है जो कि आप कहता है कि जिसकी प्रैक्टिकल जो वोकेशन सेंटर मीन दैट इज हैविंग सम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. Another important principle given by pragmatism is the principle of integration. Yes, principle of unity. Project method helps to realize the value of today's life. क्या है वैल्यू? है saves child from the burden of educative which is too much centered on books. हमारे यहाँ पे रटालाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्रैमिंग. ठीक है. जो सारी की सारी चीजें, आपने रटालाइजेशन नहीं बोलना, ये तो मैंने जो है वो इट इज जस्ट अ जॉक. ठीक है. सो दिस इज द क्रैमिंग. ठीक है. तो क्रैमिंग जो है वो हमारी बहुत ज्यादा जो ग्रेड्स और बच्चे जो है वो, मेरे ख्याल में आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही उनको ग्रेड्स कॉन्शियस बना दिया जाता है. जिस वक्त में बच्चे को बस उसको बस लैंग्वेज सीख रहा है, स्कूल जाता है और कुछ छोटी छोटी चीजें सीख रहा है, उस दौर में ही बच्चे को ग्रेड्स कॉन्शियस बना दिया जाता है. और उससे क्या होता है कि वो रट्टे की आदत और क्रैमिंग की आदत इतनी पक्की हो जाती है
कि the students don't move towards the practical application of the knowledge that they are getting. तो ये एक big loss है, ठीक है. Conclusion. So pragmatism is characterized of current educational thoughts and it is representative of progressive trends in education. Progressive education lays emphasis on learning by doing. ये आपने याद रखना बेटा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन लेज एम्फोसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. जो आप पढ़ रहे हो उसको करो भी, उसका कोई प्रैक्टिकल भी करो, ठीक है. एंड इन्वॉल्विंग द चाइल्ड एक्टिविटी इन द लर्निंग प्रोसेस. अभी जैसे इसमें से आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, आप प्रेगमेटिज्म को अप्लाई करो अपने डेली लाइफ में. आप जब कुछ पढ़ो तो उस नॉलेज को आप जो है वो याद रखने के लिए और उसको उसकी प्रैक्टिकल जो उसका वर्क के लिए उसकी एप्लीकेशन करो उस नॉलेज की. उसके अलावा ये कि आप जो बहुत ज़्यादा आपने आज के लेक्चर में भी या फिर डेली के लेक्चर में भी आप जो न्यू वोकेबलरी आपकी जो वोकेबलरी इनहेंस होती है, स्टार्ट राइटिंग दोज टिपिकल वर्ड्स, ठीक है, जो आपको न्यू लगते हैं, दोज न्यू वर्ड्स इन योर डायरी एंड मेमोराइज देयर मीनिंग्स, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज करने में. एंड इन्वॉल्विंग द चाइल्ड एक्टिविटी इन द लर्निंग प्रोसेस, तो वो बच्चे की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. Too much restraint will retard the natural growth of children. अब बच्चे को आपने ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि यार उसके इतने नंबर आए हैं, उसने वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ था. अच्छा, जब टीचर, हमारे यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा फिनोमेना है, हमारे यहाँ पे टीचरों को अंग्रेजी का, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उनको अंग्रेजी आती नहीं होती, वो क्या करती है किताब से बच्चों को पढ़ाती हैं और किताब से ही देख के मिला मिला के चेक करती हैं. इससे बच्चे की डेवलपमेंट पे, बच्चे के नॉलेज पे, बच्चे की एक्टिविटीज पे कितना असर पड़ रहा है, द टीचर कांट इमेजिन. तो मैं व्हेन आई वाज टीचिंग, तो मुझे ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तो आई वाज यू नो व्हाट, मैं पढ़ा रही थी एक जगह पे, हमारे टीचर का अरेंज नहीं था इन माय अकेडमी. तो वहां पे जब मैं बच्चों का काम चेक करती थी और होता, तो वो कहते आपको कैसे पता है कि आपको जुबानी आप चेक कर लेती हैं, आपने याद किया हुआ है. तो इस तरह के क्वेश्चंस द स्टूडेंट्स आस्क. क्यों? क्योंकि उनको कभी ऐसे टीचर मिले ही नहीं होते कि है ना, हमारे यहाँ पे फिनोमेना है कि उनको जो है वो फोकस होता है रटे पे. इससे फिर क्या होता है, बच्चे की ज़हन में बात बैठ जाती है कि मैंने वर्ड टू वर्ड याद करना है तो ही मुझे नंबर मिलने. तो वो क्या होता है कि वो जो खुद से लिखने वाली बात है ना, जो प्रैक्टिकल है, वो उसका वहां पे खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक हिंड्रेंस है उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, उसकी जो है वो ब्रॉड माइंडेडनेस में, जहाँ पे वो उसकी जो, उसको जो कहते हैं ना वो बच्चे को कि वो उसको रट्टे से निकाल के एक खुद से लिखने वाली चीज पे लाया जाए, तो वो नहीं होगा. द चाइल्ड मस्ट बी गिवन एजुकेटिव फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड डेवलप हिमसेल्फ. तो उनको ये जो है वो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है जी. सो दिस वाज all regarding pragmatism philosophy. अच्छा जी, अब हम देखेंगे जी एग्जिस्टेंशियलिज्म. जितना बढ़ा गया हम लोग इसको आज कंटिन्यू कर लेते हैं बस. Existentialism is quite different from you know what pragmatism. उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये, ठीक है. इसमें आपको जो है वो आप एक डिफरेंट चीज जो है वो इसमें पढ़ेंगे. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी. हम्म, तो आगे ही नहीं बढ़ रहा, इस पे देख लेते हैं. एग्जिस्टेंशियलिज्म. अब देखते हैं जी एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है. तो जी existentialism is a philosophical and literary movement that first popularized in France. फ्रांस में पहले पॉपुलर हुई थी सोन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज्यादा. अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्यों? एग्जिस्टेंशियलिज्म का बेटा थोड़ा सा ये है कि रिलीजन का क्वेश्चन है, गॉड को क्वेश्चन है, आपकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन है, मैं क्यों हूँ, मेरा जिंदा होने का, मेरा दुनिया में आने का पर्पस क्या है, और क्या मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, कौन मुझे मेरी हेल्प करेगा, और मेरा क्या पर्पस है. तो ये सारी चीजें जो है ना, और इसकी आपको ना मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपने ना वेटिंग फॉर गोडो की समरी पढ़ के आनी है, ठीक है.
वेटिंग फॉर गोडो जो है वो एक ड्रामा है सैमुअल बेकेट का, ठीक है। तो उसमें आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत ज्यादा मिलता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ा था जो है वो मैसेज पे, ठीक है। और क्योंकि देखिए जब इतनी ज्यादा तबाही देखी हो आपने अपनी नजरों से, तो एक आपने अपने प्यारों को खो दिया हो और आपने इतनी पेन इतना ब्लड शेड देखा हो, तो फिर आप अपनी सेंसेस में ही नहीं रहते, ठीक है। तो इधर के लोगों के साथ भी यही था कि वो उनका जो कहते हैं ना ईमान उनका डिस्ट्रॉय हो जाना, और मतलब बहुत ज्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स थे फेस्ड। अच्छा जी। सो बाय फिगर सच एज जेन पॉल जो है उसने अल्बर्ट कैमस ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। सो द रूट्स ऑफ दिस मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिलीजियस राइटिंग्स ऑफ पास्कल इन द 17th सेंचुरी, उसमें इसने लिखा था, एंड दोज ऑफ जो है वो कियरकेगार्ड इन द 19th सेंचुरी, उसने भी उस पे एग्जिस्टेंशलिज्म पे लिखा। The common thread that unites existentialists is a focus on existence. फोकस किस पे है जी? एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी, particularly the concrete existence of individual human beings। जो इंसान है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर जो है वो फोकस था। अनलाइक रेशनलिस्ट, जो रेशनलिस्ट थे, थिंकर्स थे, जिसमें हेगल है, डेस्कार्ट है, तो इन्होंने existentialists reject the premise that human beings are primarily rational creatures who live in an ordered, well-designed universe। तो डेस्कार्ट और हेगल कहते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक रेशनल क्रिएचर्स हैं, उनके अंदर अकल है, रशनील आपको पता है अकल से है, ठीक है, शऊर जिसको कहते हैं। ऐसी क्रिएचर्स हैं जो कि ऑर्डर में और वेल डिजाइन यूनिवर्स में रहती हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो डिस्ट्रक्शन आई थी, उसकी वजह से ये इनकी लाइफ्स भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों में ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म की मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल पड़ी थी, जिसमें people started questioning their they just started questioning their you know what their existence, कि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों मतलब पैदा हुए, हम मतलब क्या करें। तो उसमें आप ना वेटिंग फॉर गोडो में आपको इसका ट्रू रिफ्लेक्शन मिलता है, जिसमें जो है वो पूरे के पूरे ड्रामा में ही, प्ले में ही आप देखते हैं कि बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड सी लाइफ है कैरेक्टर्स की, और उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स हैं, देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स, और एक कैरेक्टर बहुत कम अपीयर होता है। 4 कैरेक्टर्स के ऊपर है, लेकिन चौथा कैरेक्टर तो उसके बारे में बस बात ही होती है, लेकिन वो अपीयर नहीं होता, गोडो का कैरेक्टर। तो मतलब वो आके कहते हैं कि जो 2 कैरेक्टर्स हैं उसमें, वो कहते हैं कि जो है वो कोई आए, गोडो आएगा, वो हमें रेस्क्यू करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, तो हम मतलब वो बैठे रहते हैं फ्री, दे हैव नथिंग टू डू। तो उनकी लाइफ्स जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों की लाइफ्स बिल्कुल ऐसे हो गई थी। और आपको पता है कि लिटरेचर जो है वो इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो आपको जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन मिलता है हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में क्या हुआ और किस तरह से जो है वो चीजें चल रही थी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है जी, they also do not believe that the answers to life's challenges can be solved through thoughtful consideration and reasoned deliberation। उनको नहीं लगता था ऐसा कि मतलब ठीक किया जा सकता है, बल्कि वो चाहते थे कि कोई बाहर से कोई फोर्स आए, कोई कोई जो उनको रेस्क्यू करे, उनको जीना सिखाए, उनके लिए कुछ करे। वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो you know what? Instead, existentialists view human beings as creatures whose reason is subordinate to human passions and anxieties। तो वो सबऑर्डिनेट हो गई है उनकी रीजन, उनके पैशंस और उनकी बेचैनियों पे। एंड हु एग्जिस्ट इन एन इरेशनल, एब्सर्ड एंड इनसिग्निफिकेंट यूनिवर्स। तो उनको ऐसा लगता था कि ये इरेशनल, एब्सर्ड यानी कि गैर अकली, और एब्सर्ड है बिल्कुल डिस्ट्रॉयड, मतलब गैर वाजिया किस्म की, अजीब सी, जो इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसी यूनिवर्स में हम रहते हैं। जबकि जो
रेशनलिस्ट है, जैसे डेस्कार्ट हो गया, हेगल हो गया, तो वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर दे स्पेंड some ordered or well organized, they are living in a well organized way in the well designed universe. तो ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है इनका व्यू. In such a universe, existentialists argue one struggle to become the best person one can be given one's religious, historical, cultural, economic, and personal circumstances. तो एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते थे कि एक जो शख्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है बेस्ट पर्सन बनने के लिए, जो है वो अपने रिलीजन से रिलेटेड, अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से, इकोनॉमिक से, और जो उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है. ठीक है जी. Existentialists emphasize the human being's place in complex set of circumstances in order to highlight the uniqueness and individuality within each of us. तो जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो जोर किस पे देते थे? ह्यूमन बीइंग का जो उनका जो मकाम है, उनका जो प्लेस है, वो एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में है. उनकी यूनिकनेस और उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो हर एक की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो. They stress the role of a human body in all of our acts and decisions, arguing that the mind cannot exist without the body. तो mind तो body के बगैर exist ही नहीं करता. In contrast to the majority of rationalists who assert that the mind is separate from the body. Rationalists कहते हैं कि mind का तो body के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जबकि existentialists कहते हैं जब bodily you are weak, आपने इतना कुछ face किया, तो your mind will stop working. तो rationalists इस चीज को नहीं मतलब कंसीडर करते. इन एडिशन जो है वो existentialists consider whether absolute individual freedom is possible, and if so, what the consequences of such freedom might be for our sense of responsibility to ourselves, to others, and to God. तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी फ्रीडम को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. ठीक है जी. कि क्या नतायज जो है वो ऐसी आज़ादी के हो सकते हैं जिसमें हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों पे भी, गॉड पे भी. मतलब वो ये कहते थे कि जिस तरह गॉड का है जिसमें वेटिंग फॉर गॉडो में दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द गॉडो, तो उसका बस वेट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आता. तो द थिंग इज लाइक दे आर वांटिंग सम आउटसाइड फोर्स टू रेस्क्यू देम, टू डू समथिंग फॉर देम, और वो खुद कुछ नहीं कर रहे. ठीक है. तो उनकी मतलब दे फील लाइक दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग. तो ये सारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिस्ट्रक्शन आई थी उसकी जो है वो रीजंस, उसकी कॉजेस थी बहुत ज्यादा. So more than anything, existentialists reflect on human beings and anxiety over and dread of death, and consider the consequences to our individual lives of coming to terms with the inevitability of death. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरह वेटिंग फॉर गोडो की एग्जांपल ही मैं आपको फिर से दूंगी, आप उसको इसकी समरी को जरूर रीड आउट कीजिएगा कि उनको बहुत ज्यादा दे वर लाइक फीलिंग दिस थिंग कि खुद से वो कुछ नहीं कर सकते और उनको किसी और की जरूरत है उनको रेस्क्यू करने के लिए. अच्छा जी, वी विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.